हेलो स्टूडेंट। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने इलेक्ट्रिक डायपोल जो है ना इसको एक्सप्लेन किया था। इलेक्ट्रिक डायपोल, नाउ वी वेर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो फर्स्ट वी हैव कैलकुलेटेड इलेक्ट्रिक डायपोल on the axial line on the axis of the electric dipole. Now I am going to calculate the electric field due to this dipole on the perpendicular bisector or for the point on the equatorial plane. Okay guys, here I have taken an electric dipole arrangement of these two charges plus q and minus q. They are separated by very small distance to a. I have taken an arbitrary point P at distance r from this dipole. P is the point at which we wish to calculate electric field due to this arrangement. Okay, guys, at the point P, as we know that electric field due to this positive charges will be directed outward. E प्लस हमने ले रखा है डायरेक्टेड आउटवर्ड इस तरह से, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ये क्या हुआ टूवर्ड्स है, नेगेटिव चार्ज होगा। ई माइनस हमने इधर ले रखा है। अब लेट अस से दिस एंगल इज थीटा, ठीक है ना, और ये एंगल भी हमने ले रखा है, दोनों सेम एंगल थीटा ले रखा। ओके, एट द पॉइंट पी ई प्लस, because E is the vector quantity, E will be divided into two component. One is the E cos theta, E plus cos theta, another one is the E plus sin theta. Similarly, E minus or the electric field due to negative charge will be divided into its two component, E minus cos theta and E plus E minus sin theta. Here E minus sin theta है. Okay, the vertical component E plus sin theta and E minus sin theta will be cancelled out at the point P at the equilibrium state, but net field at point P due to this dipole along the x-axis will add up. Clear? So finally let us see the calculations. If we take the magnitude of electric field E in this way, two charges plus q and minus q, so E plus will be written as 1 upon 4 pi epsilon naught q by r plus a square, and E minus will be written as 1 upon 4 pi epsilon naught q by r plus a ka whole square. Okay, let's say this is the equation 1, this is the first equation. As I told you, component normal to the dipole cancelled away and the component along the dipole axis will add up. This is the main concept. Component normal to the dipole will cancel away, that means E plus sin theta and E minus sin theta will be in opposite direction, which will cancel to each other, and the component along x-axis will add up. Therefore the total electric field at point P will be equal to E plus E minus cos theta into P का। Guys, I have taken negative sign because देखो हमने यहाँ पे ले रखा है आपका कि जो इलेक्ट्रिक पोल का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज माइनस नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस तरह हमने ले रखा है। और ये हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन आ रहा है टुवर्ड्स एक्स एक्सिस आ रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हमारा है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ये माइनस क्यू टू प्लस क्यू है, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है और net electric field directed towards this side. Okay, that is why I have taken net electric field in this form. Okay, net electric field हमने यहाँ पर ले लिया। अब इसको इक्वेशन अगर हम 2 मान लें तो यूजिंग इक्वेशन 1 and 2 we can easily calculate the net electric field at point P if R is taken as greater than A, then it can be written as minus 2qa into p cap upon 4 pi epsilon naught r cube. Okay, so thus we can say that electric field due to electric dipole at large distance अगर हमने एक्सियल लाइन पे कैलकुलेट किया तो माइनस 2p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू आया, एंड द इक्वेटोरियल प्लेन पे मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड आया माइनस p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू।
And let us see finally what are the significance of electric dipole. Guys, listen carefully. In most of the molecules such as CH4, carbon dioxide, center of positive and negative charges lie at the same place. Okay, center of positive and negative charges lies at the same plane. Okay, in most of the molecules ये जो center जो होता है एक same प्लेस पर लाई करता है. दैट इज़ वाई देयर नेट डायपोल मोमेंट क्या होता है, इक्वल टू ज़ीरो होता है. ओके, वेन एवर दिस डायपोल प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड, ओके, और देन दे डेवलप अ नेट डायपोल मोमेंट. ओके, बट इन केस ऑफ अदर सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड. लाइक आपका ये H2O है, so that they have permanent dipole moment, or even in absence of electric field they have permanent dipole moment. That is why they are also known as polar molecules. ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात अगर हम करें तो ये स्मॉल टॉपिक है बट इम्पॉर्टेंट है. गाइस, इन प्रैक्टिस हम क्या करते हैं, डील चार्जेस विद मच ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड देन चार्जेस ऑन एन इलेक्ट्रॉन. सो वी कैन इग्नोर द क्वांटम नेचर ऑफ चार्जेस. ओके, एंड इमेजिन दैट चार्ज इज स्प्रेड इन अ रीजन इन अ कंटिन्यूस मैनर. ओके, एंड इमेजिन दैट चार्ज इज स्प्रेड इन अ रीजन in a continuous manner, then such type of distribution of charge is known as continuous charge distribution. It is basically three types. One is the linear charge distribution, another one is the surface charge distribution, and last one is the volume charge distribution. Guys, in linear charge distribution, charges जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ना along the one dimensional curve or line in the space, ठीक है ना, such type of distribution is known as linear charge distribution. इसको हमने थोड़ा सा इन डिटेल करके दिखाया है. तो ये हमारे पास वन डायमेंशनल कर्व या लाइन है, चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करके हमने ऐसे दिखा दिया है. अब क्या गया है कि जो लीनियर चार्ज डेंसिटी यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना होगा, चार्जेस पर यूनिट लेंथ होती है, उसकी एसआई यूनिट क्या होगी, कूलम मीटर इनवर्स होगी. ठीक है ना, स्मॉल एलिमेंट हमने ले रखा है, स्मॉल एलिमेंट से आर डिस्टेंस पर अगर क्यू नॉट फर्दर हम रखते हैं तो लाइकवाइज हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. इन केस ऑफ रिंग ऑफ रेडियस आर, अगर रिंग के केस में हम देखते हैं तो ये जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी क्यू अपॉन 2πr होगी. लाइकवाइज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं फ्रेंड्स तो क्या होगा कि ये जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी वजह से किसी भी लोकेशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 1/4πε0 dq/r² इंटू आर कैप, और डी क्यू जो है वहाँ से हम लिख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू हमारा क्या है, डी क्यू इज इक्वल लेमडा इंटू डी एल. तो इसके टर्म में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर कैन बी रिटेन एज दिस टाइप. अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, लेसन इस होमवर्क को करके आपको जो है भेजना है. ठीक है ना, आप उसका स्नैपशॉट लेके ग्रुप में भेज देना. तो हमारा जो नेक्स्ट होमवर्क है वो हमारा क्या है कि आपको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करना है, साथ ही साथ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी डिफाइन करना है, और दोनों के केस में सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को कैलकुलेट करके दिखाना है, उसकी एसआई यूनिट बतानी है, प्लस वो कितनी फील्ड को क्रिएट करेगा. वो अगर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो सीट कितनी फील्ड अपने सराउंडिंग स्पेस में क्रिएट करेगी, उसी तरह से वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में आपको करना है. अब हमारे पास जो है नेक्स्ट मेजर टॉपिक आ जाता है वो गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन. गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन अगर हम लोग करेंगे तो मज़ा आएगा, और उसके करने के बाद क्या होगा कि हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे. अब जो छोटे छोटे डाउट होंगे क्लियर होंगे. चैप्टर बहुत लेंथी है, बहुत बड़ा है. अब क्या है कि ऑनलाइन किसी भी चीज़ को करना बड़ा मुश्किल होता है, कभी कुछ नहीं होती है चीज़ें, कभी कुछ नहीं होती हैं, इसलिए बड़ा मुश्किल से हम क्या करते हैं आपके फेवर में ये काम कर पाते हैं. कभी अगर हमने कोई वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो कभी कहीं से आवाज़ आती है, कभी
कहीं से आवाज़ आती है, बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो चलो फिलहाल ये सारे हर्डल तो हमारे पास आएंगे ही आएंगे, बट क्या है कि हमें इसके बाद गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन पढ़ने के बाद क्या होगा, हम सारे न्यूमेरिकल्स को करेंगे और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चंस करेंगे। और तेजस ने एक सीट हमको दे रखा है एमसीक्यू का, उससे भी डिस्कस करेंगे, प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन से करेंगे। तो जैसे हम न्यूमेरिकल एमसीक्यू सारे करते हैं ना, तो क्या होगा ना, इस चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और थैंक यू।